Good evening and welcome everyone to this live session. Hope everybody is able to hear me, listen to me, and able to watch me here. So sorry for the delay today. Actually, because of the lockdown thing, I got a bit late. As 10 p.m. is the last time to reach home in Delhi, so there was a lot of traffic at this unusual hour. That is 9:30. So that's why I got late. So let's get started with the agenda of the class today. Article 21, as we were dealing with it. So far, I have explained you the case law around Article 21. How from A.K. Gopalan case up till Menaka Gandhi case, Supreme Court came round the fact that Supreme Court finally agreed with the fact that this is right to life has to be compliant with ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ में कंप्लायंट होना चाहिए, राइट. अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बिना लॉ कोई बनाया जाएगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा, राइट. So those things are there. Now क्लियर है सबको इतना सा पॉइंट? ओके तो इतना हमने पढ़ लिया था. पासपोर्ट रिलेटेड केस पे हमने चीज़ें छोड़ी थी. म्यूचुअल इंक्लूसिविटी. सो इट वाज इन द मेनका गांधी केस दैट सुप्रीम कोर्ट केम अप विद द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ दीज थ्री राइट्स. आर्टिकल 14 right to equality, article 19 freedoms, and article 21 right to life and personal liberty. Clear everybody? Is it clear to everyone? Neha, takeaways from Menaka Gandhi's case. The meaning of liberty under Article 21 is of widest amplitude. Articles 19 and 21 are not mutually exclusive. That is, a law coming under Article 21 must also satisfy Article 19. In other words, a law made by the legislature which seeks to deprive a person of his personal liberty must prescribe a procedure. Clear hai? Okay. How over the years, how has judiciary given itself more powers? This is a separate analytical point. Okay, ये एक separate point है कि कैसे धीरे धीरे से judiciary ने अपने आप को इतनी ज़्यादा powers दे ली हैं. Basic structure of the constitution. सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइस किया जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं. फिर सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट लेके आई, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में आप जुडिशरी को गुहार लगा सकते हो. यू कैन रीच आउट टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट. इवन इफ you are least affected by the outcome of the case, still you can file a case. Suppose if I am a public spirited person, मैं लोगों के बारे में सोचने वाला इंसान हूँ और मुझे रिक्शे वाले रात को रोड पे सोते हुए दिखे, ठंड में बिना किसी शेल्टर होम के अगर मुझे रिक्शे वाले रोड पे सोते हुए दिख रहे हैं तो मैं उनके लिए अगर चिंतित हूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका फाइल कर सकता हूं, ये पिटीशन फाइल कर सकता हूं कि देखो मिलॉर्ड, सरकार इन लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रही. गवर्नमेंट इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ दीज रिक्शा पुलर्स. क्लियर? I can in public interest litigate का मतलब होता है केस फाइल करना. I can litigate in public interest. So that is what is there in the public interest litigation. There is a principle of, please write down, there is a principle of locus standi. हेडिंग दे लेना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. There is a principle of locus standi in normal court proceedings.
There is a principle of locus standi in normal court proceedings, which means that the person there is a principle of locus standi in normal court proceedings, which means that the person filing the case should himself be affected by the outcome of the case. Should himself or herself be affected by the outcome of the case. There is a principle of locus standi in normal court proceedings, which means that the person filing the case should himself or herself be the party which is going to be affected by the outcome of the case. इसका मतलब ये है कि अगर मैं केस फाइल कर रहा हूँ ना, तो उस केस के आउटकम से मुझे इफ़ेक्ट होना चाहिए. जैसे कि अगर मैंने बोला कि यूपीएससी में चीटिंग हो रही है फॉर एग्जांपल, या पंजाब स्टेट पीसीएस में चीटिंग हो रही है, तो कोर्ट मेरे से पूछेगा कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है. मैं ये बोलूँगा कि मैंने एग्ज़ाम दिया है, कोर्ट बोलेगा अच्छा फिर ठीक है. या मैं ये बोलूँगा कि मेरे बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है, कोर्ट बोलेगा अच्छा यू आर गोइंग टू बी दी अफेक्टेड पार्टी. तब तो इट्स फाइन, ठीक है. बट अगर कोई ये बोले कि देखो यूपीएससी में या पीपीएससी में चीटिंग हो रही है, तो मैं लोक हित में ये केस फाइल कर रहा हूँ, मैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में ये केस फाइल कर रहा हूँ, तो कोर्ट बोलेगा. पहले पीआईएल जब नहीं थी तो कोर्ट ये बोलता था कि तुम्हारा क्या मतलब है ना, तुम अपना काम करो. प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन तो अलाउड थी, पब्लिक के इंटरेस्ट में लिटिगेशन अलाउड नहीं थी. लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आने के बाद कोर्ट ने इस बात को समझा कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग ईंटों के भट्टों में, ब्रिक किल्न्स में, people who are working in the brick kilns or people who are sleeping out in the open in the chilly winters of Delhi, who cannot file case on their own behalf, who cannot file case for themselves, if a public spirited person like me can file a case, then it's fine. ओके तो अगर जो लोग अनपढ़ हैं, साक्षर नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर वो अपनी पैरवी खुद नहीं कर सकते कानून में, इफ़ दे कैन नॉट फाइल अ केस फॉर देमसेल्व्स, people or any lawyer or any public spirited person can file a case for himself or herself, right? Ready? So can himself or herself file a case for others. Clear है सबको? बोलो yes. Please say yes everyone. Clear? Clear? So please write down the concluding line. But, starting from but under the concept of PIL,
but under the concept of PIL, the Supreme Court effectively diluted the concept of, but under the concept of PIL, the Supreme Court effectively diluted the concept of locus standi. Okay, diluted the concept of locus standi. Okay, diluted the concept of locus standi. Now anyone can file, after full stop, now anyone can file a case on behalf of others. ओके, सो समझ में आ गया लोकस स्टैंडाई? मतलब जैसे पहले कोई कोर्ट में केस फाइल करता था ना, तो कोर्ट बोलता था हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, समझ रहे हो ना? अब कोर्ट ये बोलता है कोई बात नहीं, जो लोग खुद के लिए केस नहीं कर पाते, तो उनके लिए आप केस फाइल कर सकते हो, राइट? उनके लिए आप केस फाइल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग केस फाइल कर लेते तो फिर तो ठीक ही है। फिर अब आगे चलते हैं, इसी केस में जो चल रहा है अभी, जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जस्ट 1 मिनट। री इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, राइट? री इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। ओके, सो री इंटरप्रिटेशन में क्या किया है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाली चेंज, यानी समझ में आया? पहले तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ था, तो लॉ का प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड हो गया तो सब ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है? अब कोर्ट्स की पावर बढ़ गई है। अब कोर्ट ये बताएगा कि क्या सही है या क्या नहीं। ओके, समझ में आया कि क्या सही है या क्या नहीं?
समझ में आया? पहले क्या था कि क्या सही है क्या गलत, ये तो तय ही हो जाता था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब कोर्ट तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत, राइट? ठीक है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत कोर्ट तय करेगा, तो इससे पावर तो कोर्ट की बढ़ी। फिर उसके बाद अगर हम एक पूरा ट्रेंड देखें, इंदिरा गांधी के ज़माने से जजेस को खुद को अपॉइंट करने की पावर्स मिल गई। तुम समझ रहे हो, इंदिरा गांधी टेन्योर में जजेस की जो सुपर सेशन हुआ था, एक दो जजेस को इंदिरा गांधी ने सुपरसीड करके जूनियर जज को लगा दिया। ये सारा कुछ करने के बाद जजेस ने अपने आप को पावर दे ली है। 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक स्टेटमेंट आई थी that by reinterpreting the constitution, by inserting certain doctrines like basic structure of constitution doctrine, judiciary has given more power to itself. Am I clear, everyone? समझ में आ गया सबको? ले दे के जजेस ने अपनी पावर बढ़ा ली, बाकी सब कुछ हुआ या नहीं हुआ, जजेस की पावर बढ़ गई है, एक बात तय है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट्स, जब हम ये कहते हैं ना कि री इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, आर्टिकल 21 को री इंटरप्रेट किया है, तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे से जुडिशरी ने ये सारे राइट्स सुप्रीम कोर्ट में अंडर सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन इफ दीज राइट्स आर नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन इन दी communication, right? Not explicitly given in the constitution, but these things are okay. So right to privacy, right to dignity, right to speedy trial, right to travel abroad, right to clean environment, ban on polluting vehicles, all these things, okay? Clear? Right to livelihood, right to marriage, right against torture, right against bonded labor, ये सारे राइट्स। राइट टू प्रिवेसी रीसेंट एडिशन है, ओके? ये एक रीसेंट एडिशन है, इसमें समझ रहे हो कि अभी लेटेस्ट वन 2007। डिग्निटी, एवरीबडी हैज गॉट अ राइट टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ। ओके, ठीक है, तो ये सारा कुछ है यहाँ पे। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस, ये सुप्रीम कोर्ट ने किस में कहा था? हदिया जजमेंट में। हदिया जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू गॉट अ राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस। ठीक है, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, लेकिन लेटेस्ट जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, हदिया जजमेंट ऑफ 2018। राइट अगेंस्ट टॉर्चर, यू शुड नॉट बी टॉर्चर्ड, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में, एक दो ऐसे ही केसेस में कहा था, राइट? ओके, सो दिस इज देयर।
सो दीज थिंग्स आर देयर. राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, राइट टू लीगल एड, यानी कि अगर कोई आदमी कानून के पछड़े में फंस जाता है तो उसके पास फ्री राइट टू लीगल एड भी है. गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट येस्टरडे आई कुड नॉट टेक द क्लास बच्चे तुम लोगों के लिए. आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट because of the reason that my nephew was not doing well. He is suffering from COVID in Jaipur, so that's why I could not take the class yesterday. Okay, बीच बीच में क्लासेस वगैरह डिले होती है तो एक कारण ये भी था कल का, इसके लिए आई एम सॉरी. नाउ कमिंग हियर, राइट टू फूड. जिंदगी जीने के लिए जो भी ज़रूरी है ना वो सारा कुछ आर्टिकल 21 में कवर्ड है. ओके, सारा कुछ के सारा कुछ. ओके तो ये सारा कुछ है यहाँ पे. देन लैंड एक्विजिशन लॉ, ये सारा कुछ. राइट टू प्रिवेसी, कोई भी चीज़ें इनको एक बार अच्छे से पढ़ो. राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज ऑल्सो कवर्ड. क्लियर? राइट टू ट्रैवल अब्रॉड is also covered under this. Clear to everyone? Okay, so these things are there. Now coming here, examples of contemporary relevance. जो मैं तुम्हें, I keep on repeating this point to all of you that until and unless you link every article, ध्यान से सुनना इस बात को, until and unless you link every article static portion with the contemporary examples, you are not going to get good marks in GS paper 2 or 3 or 4 or 5. Okay, those of you who are not in my general studies plan, general studies course, you should think of enrolling yourself because we cover everything in this manner. Land Acquisition Act, कॉन्टेम्प्रेरी रेलिवेंस. लैंड एक्विजिशन एक्ट रिसेंटली बहुत बार डिबेट में रहता है, चर्चा में रहता है. अगर किसी की लैंड एक्वायर होती है, यानी कि किसान के लिए उसकी ज़मीन क्या है, जोरू के बराबर है. जर जोरू ज़मीन बोलते हैं ना, जोरू ज़मीन, दोनों को कंपेयर किया गया है. यानी कि लैंड इज़ लाइक फार्मर्स मदर और फार्मर्स, you can say any relationship can be there, right? So if a farmer is deriving his livelihood from the piece of land, and if that piece of land is acquired, then if that piece of land itself is acquired, then farmer has got a right to approach the Supreme Court or the government to seek compensation. Clear? So compensation has to be fair. Compensation has to be fair. Clear? अगर किसी को आप टॉर्चर करके, जो हमने पहले भी पढ़ा था ना, किसी को टॉर्चर करके उनसे ट्रूथ उगलवाना, कौन से आर्टिकल में पढ़ा था बताओ जरा. In which article did we read about this? Extraction of truth by using unfair, inhuman means is unjust. Extraction of truth by using unfair, inhuman means is unjust. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में अगर सरकार आर्बिट्रेरिली, अगर पार्लियामेंट आर्बिट्रेरिली 20 हफ्ते की लिमिट को रखती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा आर्बिट्रेरिली आपने अनसाइंटिफिक या नॉट सो साइंटिफिक रीजंस पे, बिना किसी फैक्ट्स पे बेस्ड आपने 20 हफ्ते के लिए ये कहा कि 20 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी अबॉर्ट नहीं कराई जा सकती, वो गलत है. ओके Is this clear to everyone? So these things are there. Now reservation policy. Any provision for reservation should have sufficient data to back it. Any provision for reservation should have
sufficient data to back it. अगर आप reservation भी देते हो तो वो क्या right to livelihood देती है? हाँ, अगर किसी को reservation मिल जाता है और उसको नौकरी मिल जाती है तो उसके लिए वो जीवन देने वाली नौकरी बन गई है ना, livelihood earn कर रहा है. If a person is deriving directly or indirectly his livelihood from certain provision, that also is covered under Article 21. So you can see here how wide is the amplitude, isn't it? लाइफ में तो कुछ भी ऐड किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 1997 की जजमेंट में ये कहा राइट टू एजुकेशन. मैं अभी तो तुम्हें देखो कॉन्टेम्प्रेरी रीसेंट एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ठीक है. 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर सही जिंदगी डिग्निफाइड लाइफ की बात करी जाए तो राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर? ठीक है, तो ये सारा कुछ है. क्योंकि देखो अगर किसी पर्सन के पास इतनी भी साक्षरता लिटरेसी नहीं अगर किसी पर्सन के पास इतनी सी भी लिटरेसी नहीं है कि वो अगर किसी पर्सन के पास इतनी सी भी लिटरेसी नहीं है कि वो एक्सपायरी डेट मेडिसिन के ऊपर पढ़ सके, है ना, तो उसकी जान खतरे में है ना. समझ में आया? देन दैट पर्सन्स लाइफ इज इन डेंजर. क्लियर? सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. एम आई क्लियर टू एवरीवन? The government in Menaka Gandhi's case argued that since Gandhi's liberty to move around was taken away in accordance with the procedure established by law, Ms. Gandhi doesn't have a right under Article 21. क्लियर? ये सारी चीज़ें हो रही हैं. समझ में आया? अब ये सारा कुछ तुम पढ़ोगे एक बार, ये मैंने तुम्हें समझा दिया है पूरा. इसका गोल्डन ट्राइंगल सुप्रीम कोर्ट ने बुन दिया. सुप्रीम कोर्ट स्टिचिंग टुगेदर ऑफ दीज 3 आर्टिकल्स. सुप्रीम कोर्ट स्टिच्ड टुगेदर दीज 3 आर्टिकल्स टू कम अप विद द प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन ट्राइंगल. राइट? ये सारा कुछ था. अब आते हैं, क्या राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डिग्निफाइड लाइफ ऑल्सो? यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, मैंने डिग्निफाइड के ऊपर फोकस किया है. डज राइट टू डिग्निफाइड लाइफ ऑल्सो इंक्लूड राइट टू डाई विद डिग्निटी? अगर किसी पर्सन को लगे कि उसकी ज़िंदगी डिग्निफाइड नहीं है, वो सड़क पे आ गया, अगर विजय माल्या को लगे कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, तो क्या उसे सुइसाइड करने का अधिकार है? नहीं. सुप्रीम कोर्ट सेड राइट टू लाइफ does not mean right to die also. मगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरी ज़िंदगी में मरना चाहूँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या ये राइट है? नहीं, ये राइट नहीं है मेरे पास. समझ में आया? Because your life is not only your life is also the right life of people who are connected to you. Okay, people who are dependent on you. You are a part of that ecosystem of your family. Clear? Am I clear to everyone? So these things are there. Now, just 1 minute, guys.
Clear to everyone? So this is there. Right to dignified life includes right to die with dignity. नहीं. अब यूथेनेशिया क्या होता है बच्चों? यूथेनेशिया होता है कि यूथेनेशिया का मतलब बेसिकली होता है अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा ग्रेव पेन में हो, इफ somebody सफरिंग फ्रॉम डेथ लाइक पेन, does that person have the right to approach doctors and ask for easy death? अगर पता है कि डेथ इज इमिनेंट, अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम क्रिटिकल इलनेस, है ना, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम क्रिटिकल इलनेस, do you think that person has got a right to ask the doctors to give him some lethal injection with the help of which he would be able to die easily? अगर पेन को प्रोलॉन्ग किया जाए, अगर पता है कि कोई पर्सन कोमाटोज में चला गया, लॉन्ग ड्रॉन बैटल में है, लाइफ जिंदगी जीने की अपनी, तो क्या फिर उसको हमें डेथ दे देनी चाहिए? ठीक है, यहाँ पे क्या है? द डिलेमा ऑफ डेथ एंड डाइंग. डिलेमा ऑफ डेथ एंड डाइंग. लाइफ इज सेक्रेड बट शुड इट बी इग्नोमिनियस? लाइफ सेक्रेड है, ज़िंदगी देखो बहुत कीमती है ना, सेक्रेड है, पूजनीय है, पूजने वाली ज़िंदगी है, पूजन योग्य है, बट क्या इग्नोमिनियस हो सकती है कि उसको लटका के रखा जाए बिस्तर पे, कोई उनका एक्सक्रीटा साफ कर रहा है? अगर कोई पर्सन ये कहे कि मैं पूरी ज़िंदगी इसीलिए जी रहा था कि मैं अपने बच्चों को सुख दे सकूं, उनके ऊपर निर्भर ना रहूं, डिपेंडेंट ना रहूं, लेकिन बाद में उसका एंड इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो, डेथ बेड पे हो वो, तो क्या वो ज़िंदगी के लिए बजाय एक पेनलेस मौत मांग सकता है? कैन दैट पर्सन डिमांड पेनलेस डेथ? सुप्रीम कोर्ट इन अरुणा शॉनबाग केस अलाउड यूथेनेशिया. ओके, यूथेनेशिया क्या होता है? यूथेनेशिया इंजेक्टिंग अ पर्सन विद द लीथल इंजेक्शन. ओके, इंजेक्टिंग अ पर्सन विद अ लीथल इंजेक्शन. क्लियर? इवन इफ द पेशेंट हिमसेल्फ आस्क्स फॉर, दैट इज डिफरेंट. ठीक है, अब होता है लिविंग विल. लिविंग विल क्या होता है? जीते जी अगर कोई पर्सन, जैसे प्रॉपर्टी की विल लिखते हैं ना, अगर कोई पर्सन जीते जी अपनी विल छोड़ जाए कि अगर उसमें, जैसे मान लो आप हो, आपने लिख दिया कि जब मैं 70 ईयर्स का हो जाऊंगा और अगर मैं कोमाटोज में चला गया या मुझे कैंसर हो जाए या मैं अनकॉन्शियस हो जाऊं, तो मेरे को ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर्स मेरे को क्या करें, मेरी फैमिली को हक है डॉक्टर्स को मेरी ये विल दिखाई जाए और उनको ये बोला जाए कि मुझे लीथल इंजेक्शन दे दें. ठीक है, तो इसको बोला जाता है लिविंग विल. जीते जी सही मेंटल कंडीशन में अगर कोई पर्सन ये लिख देता है कि उसको ऐसी सिचुएशन में मौत दे दी जाए. नाउ यूथेनेशिया इज ऑफ 2 टाइप्स. प्लीज राइट डाउन active euthanasia and passive euthanasia. Active euthanasia and passive euthanasia. Active euthanasia basically means when deliberately a lethal poisonous injection is administered to a person. A lethal poisonous injection is injected into a person
a lethal poisonous injection is inserted into a person who is suffering from incurable disease. ठीक है, this is active euthanasia. Clear to everyone? Clear, guys? What is passive euthanasia? Passive euthanasia is, just give me a minute. Please read this. So passive euthanasia is, yes, Aruna Schonbach case, we are going to deal with that. Okay, I will tell you the entire history also. अभी के लिए इस आर्टिकल 21 को कवर करते हैं बच्चे, ठीक है. पैसिव यूथेनेशिया, एक्टिव यूथेनेशिया तो हो गया. पैसिव यूथेनेशिया इज व्हेन no outside intervention is there. When no outside intervention is there. No outside intervention is there. Passive euthanasia is when no outside intervention is there. Only external medical aid. फुल स्टॉप के बाद लिखना है ओनली एक्सटर्नल मेडिकल एड इज विड्रॉन. Only external medical aid in the form of live ventilator support. Only external medical aid, aid मतलब हेल्प, बाहर से जो भी डॉक्टरी सहायता दी जा रही है उसको विड्रॉ कर लेना. ठीक है, अगर कोई कोमाटोज में है, लाइफ वेंटिलेटर सपोर्ट पे है, ओनली थिंग दैट द डॉक्टर्स डू इज दे विड्रॉ द एक्सटर्नल सपोर्ट. ओनली लाइव वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम, लाइव वेंटिलेटर सपोर्ट इज विड्रॉन. Okay, so this is there. In some cases it can be like, समझ में आ गया ये external passive euthanasia और active euthanasia. Clear? Everyone, please say yes, guys, quickly.
क्लियर है सबको? सो दिस इज देयर नाउ. Voluntary euthanasia or involuntary euthanasia. Involuntary means compulsory. In countries like Germany, euthanasia is compulsory. Okay, voluntary euthanasia is when it is requested by the sufferer. Euthanasia is not helping the person. ठीक है? Okay, this is to ensure a calm and peaceful death within the context of relieving incurable suffering in terminal illness or disability. Euthanasia is voluntary when requested by the sufferer. Involuntary or compulsory if it is against the will of the patient. ठीक है, जर्मनी में ये इनवॉलेंट्री है. ठीक है, अब दिक्कत पता है क्या है? यूथनेशिया वैसे अच्छा लगता है. हमने ये बोला सुप्रीम कोर्ट, पहले लिख लो, सुप्रीम कोर्ट इन अरुणा शॉनबाग केस, ऑनरेबल सुप्रीम, ऑनरेबल लिखते नहीं है वैसे क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं उन्हें सब पता होता है कितना ऑनरेबल है और कितना नहीं. ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट, यस, इन इंडिया ओनली पैसिव यूथनेशिया इज अलाउड. इसी के साथ लिख लो पहले, इन इंडिया ओनली पैसिव यूथनेशिया इज अलाउड. क्लियर है बच्चे सबको? In Aruna Shanbag case, the Supreme Court had allowed passive euthanasia. Clear? In Aruna Shanbag case, this 2011, the Supreme Court had allowed passive euthanasia. ओके, बट इसके बारे में क्रिटिक्स पता क्या कहते हैं कि यार ये तो फिर वही हो गया कि लाइफ को भी तुमने कमोडिफाई कर दिया. लाइफ इज़ लाइक एनी अदर कमोडिटी, जब तक चल रही है तब तक ठीक है, नहीं तो उसको CFL लाइट की तरह सेफली डिस्कार्ड कर दो, है ना, किसी टूटे हुए खिलौने की तरह डिस्कार्ड कर दो. यूथेनेशिया पैसिव अभी अलाउ किया गया है. क्रिटिक्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लिखो, क्रिटिक्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, critiques of the Supreme Court judgment critics of the Supreme Court judgment say that euthanasia, बहुत अच्छे से लिखवा रहा हूँ, ध्यान से लिखना, यूथेनेशिया कॉमा, क्रिटिक्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से दैट यूथेनेशिया कॉमा
is a slippery slope. Slippery slope. Allowing euthanasia in any form. ऐसे लिख लो. Say that allowing euthanasia in any form is a slippery slope. Critics of the Supreme Court judgment allowing euthanasia say that allowing euthanasia in any form is a slippery slope. ठीक है, जिन कंट्रीज में यूथेनेशिया अलाउ किया गया वहां पे कुछ ऐसी जर्नी देखी गई. ठीक है, पैसिव से शुरू हुआ काम. पैसिव मतलब जस्ट द विड्रॉल ऑफ मेडिकल सपोर्ट, फिर वो ख़त्म हुआ एक्टिव पे. जर्मनी, जिन कंट्रीज़ में ऐसा हुआ, धीरे धीरे से वहाँ पे बिना पेशेंट की मंजूरी के बिना किसी भी आज्ञा के, बिना किसी भी लीगल उसके इसको अलाउ करा जाने लगा. क्लियर? यानी कि जर्मनी में क्या हुआ कि शुरुआत वहाँ पे भी एक्टिव पैसिव यूथेनेशिया से हुई थी, जस्ट दी विड्रॉल से. फिर वहाँ पे आज लीथल इंजेक्शन दिए जाने लगे हैं. ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के साथ शुरुआत हो गई है कि धीरे धीरे से इंडिया भी इसी लीग ऑफ कंट्रीज़ में आ जाएगा. इंडिया वुड ऑल्सो बी वन ऑफ दी मेंबर्स ऑफ दिस लीग विच हैव अलाउड पैसिव. फिर पता है क्या होता है, जब पैसिव अलाउ होने लग जाता है, एक्टिव से पैसिव से एक्टिव हो गया. एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब एक्सटर्नल ड्रग विल बी एडमिनिस्टर्ड. ठीक है, फिर दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है कि जो अच्छी खासी लाइफ है ना, उसमें भी जानबूझ के मर्डर्स कराए जाते हैं फैमिली मेम्बर्स के द्वारा. यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे इंसिडेंट्स सामने आए कि अच्छे खासे ग्रैंड पेरेंट्स को जानबूझ के कुछ ऐसा पॉइजनस फूड वगैरह दिलवा के 2000 करोड़ 3000 करोड़ की संपत्ति के लिए लीगली मौत दी गई है. मेडिकली वहाँ पे डेथ दी जाती है. ठीक है, कि केस भी ख़त्म, कि डॉक्टर से बोला, डॉक्टर को भी ख़रीद लिया, ये सब करके अच्छी खासी ज़िंदगी. इसीलिए मैंने इस एरो को नीचे तक स्ट्रेच किया है. इज़ दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इसीलिए हम इसको स्लिपरी स्लोप कह रहे हैं. एक बार तुम चलना शुरू हुए इस पे पैसिव यूथेनेशिया पे, एक्टिव पे भी नहीं रुकोगे, फिर तुम लाइफ पे जाके रुकोगे, लाइफ छीनने पे आ जाओगे. समझ में आया सबको? क्लियर है? प्लीज से यस एवरीवन. आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूथेनेशिया. ओके, यूथेनेशिया वीकेंस सोसाइटीज रिस्पेक्ट फॉर सैंक्टिटी ऑफ लाइफ. ज़िंदगी तो ज़िंदगी है. तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि ये पर्सन कॉमा में है, कभी वापस नहीं आएगा. मिरेकल्स डू हैपन, मिरेकल्स हैव हैपेंड, है ना? ऐसा भी तो होता है ना कि ये लोग बोल देते हैं कि कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन कोमाटोस से एक आदमी खड़ा हो जाता है कभी कभी. एक्सेप्टिंग यूथेनेशिया एक्सेप्ट्स दैट सम लाइव्स. आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट हैं इसके. एक्सेप्टिंग यूथेनेशिया एक्सेप्ट्स दैट सम लाइव्स आर वर्थ लेस देन अदर्स. बोल तो दो, यस तो बोल दो. ठीक है, जो लोग सारे देख रहे हो, तुम लोग मतलब ही तो मत बनो यूथेनेशिया की तरह, यूथेनेशिया देने वाले सुप्रीम कोर्ट की तरह, है ना? बोलो यस. वॉलंटरी यूथेनेशिया इज द स्टार्ट ऑफ अ स्लिपरी स्लोप दैट लीड्स टू इनवॉलंटरी यूथेनेशिया एंड द किलिंग ऑफ पीपल हु आर थॉट अनडिजायरेबल. राइट? यूथेनेशिया माइट नॉट बी इन द पर्सन's बेस्ट इंटरेस्ट. हो सकता है कि वो जीना चाहता हो, है ना? यूथेनेशिया अफेक्ट्स अदर पीपल्स राइट, नॉट जस्ट दोज ऑफ द पेशेंट्स. यूथेनेशिया अफेक्ट्स दी, अगर लिविंग विल भी ली जाती है. 2018 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यूथेनेशिया को, लिविंग विल वाले यूथेनेशिया को अलाउ कर दिया. 2011 की जजमेंट में क्या था कि 2011 से 2018 का सफ़र कुछ ऐसे रहा. 2011 में जो पर्सन ने, देखो अगर मैं हूँ, मैं अभी जिंदा खासा चलता फिरता हट्टा कट्टा आदमी, ठीक है. अब अगर 2011 में क्या था कि जैसे अरुणा शॉनबाग केस में क्या हुआ कि अरुणा शॉनबाग के केस में लिविंग विल वगैरह कुछ नहीं था ना. उन्होंने लिखा कि अगर मेरी मौत, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो, मैं कोमा में चली जाऊं तो मेरे साथ मेरे को मौत दे दी जाए. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था. बस उनके केस में सिर्फ ये कर दिया कि हाँ ठीक है, मतलब अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है तो फिर तुम ये कर लेना. ठीक है,
डॉक्टर्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि हाँ वो 34 साल से 34 ईयर्स से हर लाइफ इज बीइंग ड्रैग्ड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इनको मौत दी जा सकती है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो लैंग्विश हो रहा है बेड पे, अ पर्सन हु इज बीन लैंग्विशिंग फॉर 30 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, डॉक्टर, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स कैन डिसाइड, ठीक है, अलॉन्ग विद द अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस। लेकिन 2018 में क्या चेंज आया? 2018 में ये चेंज आया दैट अ पर्सन while he is alive and healthy and fit and fine, he can write a living will in which he would state as to what kind of a treatment should be given to him if he or she encounters such a problem in life, medical problem in life. If he meets an accident after which he loses his consciousness all of a sudden. Clear to everyone? So this was the difference brought about by the Supreme Court judgment of 2018. Clear? This judgment was brought about after the right to privacy. ओके, राइट टू प्रिवेसी जब दिया गया सिटीजन्स को, तभी ये डिसाइड हुआ कि लाइफ इज़ अ प्राइवेट अफेयर. A person who is living has every right to decide as to what kind of a treatment should be given to him while he is, in case he lands up in a big medical trouble. Done? ये राइट टू प्रिवेसी वाला एंगल मैंने डिक्टेट जो किया है ना, इसको लिख लेना, ठीक है. अब ये कल पढ़ेंगे हम. कैन द राइट टू बेग बी रेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए. क्लियर फॉर एवरीवन गाइज? आजकल क्लासेस थोड़ी सी छोटी हो रही हैं बच्चे, हमारे लिए भी दिक्कत है, ट्रैवलिंग में टाइम वाइम चला जाता है कोविड-19 और ये सब के चलते, एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की वजह से भी our offline classroom center is coming up. As and when the situation would be fine, we would be out of COVID-19 and all, so offline center is already ready and some of the classes are happening there. In a capacity of 100 students, we are conducting classes for 25 students only. Okay, so this was all for today. Thank you guys, bye bye, good night. Do read this euthanasia topic on your own once before going to bed. Thank you guys.